Assalamu alaikum dear students. I am coming again here with a topic and that topic is related with the linear momentum. Okay, very nice. Dear students, today in fact I will discuss here Newton's second law of motion and meantime I will throw light on Newton's third law of motion. Dear students, we have already discussed Newton's first law of motion there in my previous topic. Okay, very nice dear students. Let's start here. First of all, let us try to throw little bit light about Newton's first law and then after that I will take Newton's second law. बताएंगे स्टेटमेंट और इसके बाद डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और लीनियर मोमेंटम के बारे में भी कुछ डिस्कशन हो गया। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, सी ओके वेरी नाइस। सी डियर स्टूडेंट्स हियर, डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या डिस्कस किया था यहाँ इन माय प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस्ड हियर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बेटा डिस्कस किया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो क्या व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एक स्टेटमेंट ये है कि बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था। बेटर स्टेटमेंट ये है कि अगर ये भी ऐसे रखेंगे, when net force acting on a body is zero, then the body will be at rest or the body will be in uniform motion in a straight line। देखो बेटा क्या एक्चुअली if अगर ऐसे देखेंगे, अगर कोई बॉडी यहाँ बेटा सपोज दिस इज a body, okay very nice, it is lying on the ground, if number of forces are acting on it, here one force is just like this is F1 and here मान लीजिए कि बेटा F2 है और यहाँ कोई एक और फोर्स है F3, एक और फोर्स है मान लीजिए कि यहाँ F4, when if sum of all forces, if F1 plus vector sum of all forces acting on the body here is zero, if अगर vector sum of all the forces that is acting on the body is zero, then according to Newton साहब के मुताबिक क्या है, then the body will be at rest। ये रेस्ट में हो सकती है or the body will be in uniform motion, and that is also known as equilibrium state, uniform motion। क्योंकि मैंने कहा था ना प्रीवियस लेक्चर में कि न्यूटन साहब का लॉ जो देता है that also here gives concept of mechanical equilibrium। इसको mechanical equilibrium भी कहेंगे। When total vector sum of forces acting on a body is zero, then the body will be at rest। यहाँ ये रेस्ट में हो सकती है, इसका मतलब है कि इसकी v जीरो हो सकती है या इसकी बेटा v कांस्टेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन इज जीरो एट दैट टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? In other words, we can say that when a body is moving with a uniform velocity, then at that time acceleration is zero, and then at that time the total sum of forces acting on the body is zero, and that is also known as, when it is at rest, that is known as equilibrium of rest. But when the body is in uniform motion in a straight line, continues in the same state, that is known as equilibrium of motion। ओके वेरी नाइस। तो ये न्यूटन साहब ने दिया था एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब के मुताबिक क्या है, कोई भी चीज रेस्ट में हो सकती है तब व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन देयर नेट सम इज जीरो, देन द बॉडी विल बी एट रेस्ट। जैसे मैंने कहा कि हियर फोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m, okay, when their vector sum is zero, when their net force is zero, then the body will be either ये रेस्ट में हो सकती है या किसमें, या it will move with a uniform velocity v is equal to constant, और ये क्या इस वक्त जीरो हो सकती है। This is the statement for Newton's first law of motion। Okay, very nice। बात आई समझ में? हाँ ओके। देखो बेटे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हियर वी हैव टू डिस्कस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। ओके सी डियर, यहाँ ये भी कहेंगे नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स, ये भी स्टेटमेंट है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी एट रेस्ट और नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये भी स्टेटमेंट है न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ का, ये भी स्टेटमेंट है बेटा फर्स्ट लॉ। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी एट रेस्ट, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, ऐसे भी कह सकते हैं, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी एट रेस्ट are in a state of uniform motion, are in a state of uniform motion in a straight line, of uniform motion in a straight line। कोई किसी किस्म की फोर्स की जरूरत नहीं है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट एट रेस्ट। कोई फोर्स की जरूरत नहीं है कि बॉडी को ये रेस्ट में रखिए, खुद रेस्ट में रहती है विदाउट एनी फोर्स। एंड ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म मोशन when no force is required to keep this, no force is required to keep a body in a uniform motion in a straight line। In other words, when net force acting on the body is zero, then the body will be at rest or in uniform motion in a straight line। Okay बेटा, ये आपको आई बात समझ। Now I will discuss here Newton's बेटा। अब क्या करेंगे डिस्कस, यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ। तो देखो बेटा क्या,
एंड ये कीप दिस थिंग इन माइंड, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। वो डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। वो डिस्कस करेंगे आगे। देखो बेटा, फिलहाल यहाँ बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, ओके वेरी नाइस। यहाँ क्या लिखेंगे, सी डियर, यहां लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन क्या पढ़ना है, दूसरा लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले बेटा यहां पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है लीनियर मोमेंटम की। तो बेटा क्यों ना हम पहले पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। ओके देखो बेटा क्या है, मैंने यहां लिखा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम देखो बेटा क्या है, लीनियर what is dear students linear momentum? When once I know the linear momentum, then I can here state Newton's second law of motion, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है लीनियर मोमेंटम का। तो बेटा मैंने यहां से नोट किया लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी से नोट करते हैं और यहां वेक्टर लिखते हैं बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज दिस बेटा, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। इट इज द टोटल मोशन, total quantity of motion, rather total quantity of motion, it is the total quantity of motion contained in a body। क्या होती है बेटा, it is the total quantity of motion contained in a body। ठीक है ना बेटा, क्या लिखा मैंने, लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं बेटा, पी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। एक बॉडी जब मोशन में हो, इसमें कितनी क्वांटिटी, कितनी मकदार हो मोशन की, कितनी मकदार हो रफ्तार की, ठीक है ना, कितनी मकदार हो मोशन की, दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नोन एज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम। ओके वेरी नाइस। तो मैथमेटिकली किसे लिखते हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा ना बेटा। देखो मैथमेटिकली वी राइट इट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, it is also defined as, it is also defined as बेटा क्या डिफाइन करते हैं, it is also defined as the product of mass and acceleration, product of mass and acceleration। शॉर्टेस्ट बेटा ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है इसकी। तो फोर्स क्या, सॉरी लीनियर मोमेंटम पी से लिखते हैं, ये किसके बोलते हैं, मैस इनटू एक्सेलरेशन। बेटा किसके बोलते हैं, मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पी लिखेंगे मैस इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass and a। Mass is a scalar quantity and a is a vector quantity। When a vector quantity is multiplied by a scalar quantity, we get another vector quantity, here it is p। Okay, तो बेटा देखो क्या है, यहाँ ऐसे लिखेंगे सी डियर, therefore I will write dear students here P to be as बेटा ऐसे लिखेंगे mass into acceleration। Okay very nice। अब देखो बेटा क्या है, the direction of, सॉरी नॉट mass and, सॉरी बेटा एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है। ओके वी वेलोसिटी है, मेरी सॉरी, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, फोर्स की नहीं ये लेने, सॉरी बेटा ये इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity। गलत हुआ था, प्रोडक्ट क्या है, ओके बेटा ऐसी सॉरी गलती हुई, क्या है एक्चुअली P क्या है, इट इज डिफाइंड linear momentum is, sorry dear student, linear momentum is defined as product of mass and velocity, as product of, beta sorry I think it is force, ये force की mass and acceleration है। linear momentum is defined as product of mass and velocity, not mass and acceleration, that is force, mass and velocity। ठीक है ना, okay very nice, sorry dear। तो क्या लिखा, linear momentum is defined as product of mass and velocity। ऐसे ही बेटा देखो बेटा क्या P लिखते हैं, P mass into velocity, mass into velocity। क्या लिखते हैं बेटा, linear momentum की डेफिनेशन क्या है, mass into velocity। ठीक है ना, okay very nice। देखो बेटा, तो the direction of P is when a vector is multiplied by a scalar, we get another vector, here another vector is P as per rules of vector। Here again I am using rule of vector। देखो बेटा मैंने क्या कहा कि अगर वेलोसिटी को, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से ज़रब देंगे तो एक अनदर वेक्टर बनता है अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल्स, एंड दैट वेक्टर हियर इज ए लीनियर मोमेंटम।
Here velocity is a vector and mass is a scalar. When vector is multiplied by scalar, we get another vector, but here another vector is linear momentum. Okay. Now the direction of P is same as that of V. हमने इसमें define किया था. The direction of लिखो बेटा क्या? The direction of P is a vector quantity. P is a कौन सी quantity होती है बेटा? Vector quantity. P is a vector quantity. It has same direction as the instantaneous velocity. P has same direction. P has same direction as that of instantaneous velocity. As that of instantaneous velocity. जो velocity की direction होना है at an instant of time, because velocity is changing. When velocity changes, momentum will change. Okay, very nice. So the direction of velocity, the direction of linear momentum is along the direction of instantaneous velocity. Average velocity मैंने नहीं लिखी बेटे, मैंने टोटल वेलोसिटी नहीं लिखी, मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखी, मैंने क्या लिखी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस when velocity is changing, when velocity has different value as different instantaneous, momentum changes accordingly. Momentum is accordingly different at different instantaneous. So the direction of P is same as that. This is not average velocity, this is instantaneous velocity. Okay, ds by dt. The direction of P is same as that of ds by dt, not delta s by delta t, that is average velocity. Okay, very nice. P is a vector quantity. It has same direction as that of instantaneous velocity. V instantaneous. ये average नहीं है बेटे, instantaneous. और instantaneous velocity क्या होती है बेटा? ऐसी V instantaneous होती है बेटा, आपको पता है कि वो होती है ds by displacement, rate of change of displacement with respect to time. Okay. The direction of rate of change of displacement with respect to time is the direction of linear momentum. Okay, very nice. Good. ऐसे भी कहेंगे. ओके, नो बेटा ऐसा यूनिट इसका क्या है, इसका डायरेक्शन भी मैं भी बताइए. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज द मैग्नीट्यूड दैट इज प्रेडिक्टर ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सिंपल, तो दिखाएंगे भी न्यूमेरिकल्स में. ओके, देखो बेटा क्या. अब नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम. ऐसा यूनिट क्या है इसका? एस आई यूनिट ऑफ किसका? ऑफ पी. पी इज लीनियर मोमेंटम. बेटा क्या है इसका ऐसा यूनिट? तो इसका ऐसा यूनिट है क्योंकि हमको पी पता है. पी किस बात है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी. तो बेटा यहां लिखेंगे इसका ऐसा यूनिट केजी और इस वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. तो बेटा क्या है इसका यूनिट? तो ये इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड. और इसको लिखेंगे केजी मीटर सेकंड इनवर्स. ये भी ये दिस इज यूनिट ऑफ. ये किसका यूनिट है? लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का. और बेटा आपको पता है कि डायमेंशंस इसकी क्या है? डायमेंशंस यू नो वी हैव ऑलरेडी डन डायमेंशंस. तो देयरफॉर यहां लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ किसकी? डायमेंशंस ऑफ किसकी बेटा? डायमेंशंस ऑफ पी. डायमेंशंस ऑफ पी आर हियर बेटा, यहां मास के बदले कैपिटल एम लिखेंगे. और बी की क्या होती है? एल टी माइनस वन. देन दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम प्रोसीडिंग हियर टुवर्ड्स Newton's second law. But before that, I will throw some light on this topic again. Okay, देखो बेटा. तो लीनियर मोमेंटम सिंपल याद रखना कि मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है. क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. देखो बेटा क्या है. अब देखो क्या है कि ये मैंने कहा कि इट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी. क्या लिखा बेटा मैंने? दैट लीनियर मोमेंटम इज, क्या ये भी लिखी ना मैंने यहां, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी. समझाएंगे थोड़ा बेटा आपको. Total quantity of motion contained in a body. Contained in a body. Contained in a body. कैसे है बेटा? देखो कैसे, देखो सीरियर. क्योंकि डेफिनेशन में P जो है, P किसके बारे में? Mass and velocity. Here P depends upon both mass as well as P depends upon velocity. So more the mass, more is the momentum, that is more is the quantity of motion contained in a body when the body is in motion, and more the velocity, more is the linear momentum, and more is the quantity of motion contained in a body. How? थोड़े दिखाएंगे बेटा. See first केस यहाँ करेंगे. अगर बेटा हम ऐसे V, पहले V को कांस्टेंट रखेंगे. मान लीजिए कि V कांस्टेंट है या M कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. देखो बेटा क्या, अगर हम यहां लिखेंगे पहले, देखो बेटा क्या है, मैस को पहले यहां कांस्टेंट रखेंगे या वी को कांस्टेंट रखेंगे. वी. ओके, वेरी नाइस. देखो बेटा सी डियर, सी डियर, एक बेटा अगर पहले m इज कांस्टेंट, मास को कांस्टेंट रखेंगे, मास को कांस्टेंट रखेंगे, एंड v देखो बेटा क्या है,
मैं यहां एक बॉडी ऐसे लूंगा सेम मैच जस्ट लाइक ए बैलेट। बैलेट जो होता है ना, बैलेट, बैलेट गोली, गोली बैलेट फायर फ्रॉम ए गन। ओके, मैच सेम, एक बैलेट ये, एक बैलेट ये। अगर बेटे ये गन में फायर हुआ, गन से फायर हुआ, ये गन से फायर हुआ, फायर किया लेकिन किससे, गन से। ये बैलेट B1, B1 इसकी स्पीड जबरदस्त है, वेलोसिटी जबरदस्त है इसका, लेकिन मैच तो सेम है, मैच मैच अब बहुत ही सेम। अगर हमने पहले को फायर किया किसी गन से तो वेलोसिटी जबरदस्त, and it is very difficult to stop this pellet by hands. It will penetrate into the hands. We cannot stop it because here the quantity of motion that is contained in this pellet, that is momentum, it is very large due to velocity, although mass is same. अगर इसी यही pellet आप थ्रो करेंगे किसी बेटा गन से नहीं, इस pellet को थ्रो करेंगे with our hands, हैंड से थ्रो करेंगे। किसे थ्रो करेंगे, हैंड से थ्रो करेंगे। दैट इज बी टू बैलेट की इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां बेटा कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है पहले में जब फायर करेंगे बैलेट से, लेकिन दूसरे केस में वेलोसिटी कम होगी, कम होगी। क्यों, जब वेलोसिटी कम होगी तो वी कैन इजीली स्टॉप दिस बैलेट बाय आवर हैंड्स बाय सिंपली पुटिंग हैंड्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेलोसिटी। बट मैस इज सेम, मैस इज सेम, मैंने मैस कांस्टेंट रखा, लेकिन यहां बैलेट जो फायर हुआ किसे, when we fire a bullet with gun से जो fire हुआ, and that is tremendous velocity, we cannot stop it, and because it is a tremendous quantity of motion, it is a tremendous momentum, but we can easily stop this bullet although mass of both the bullet same, because this bullet is thrown, किसी ने हाथ से लगाया इसे bullet और हमने यहाँ इसको easily बेटा stop किया by our hands, because इसकी quantity of motion कम है due to velocity factor. सो मैंने वेलोसिटी फैक्टर डिस्कस किया। अब दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, दूसरा फैक्टर यहां है, अगर v को कांस्टेंट रखेंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन किसको चेंज करेंगे, यहां मैंने बेटा वेलोसिटी डिफरेंट, इसकी वेलोसिटी हियर वेलोसिटी ऑफ v1, ये वेलोसिटी v2, यहां मैंने v1 ग्रेटर देन ले ली थी v2, क्योंकि v1 फायर किया था गन से, लेकिन v2 को मैंने थ्रो किया हैंड से, एंड इसके ट्रेमेंडस मोमेंट ऑफ जो है ना, ये मोमेंटम है, इसका मोमेंटम कम है बिकॉज इट हैज मोर क्वांटिटी ऑफ मोशन, बिकॉज इट लेस क्वांटिटी ऑफ मोशन कैन बी इजीली स्टॉप्ड, इट हैज मोर क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट कैन पायरिस, वो पास हो जाएगा हमारे हाथों को और गोली हमको, और इट विल गेट इंजर्ड। ओके, वेरी नाइस। अब क्या दूसरे केस में क्या रखेंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, वेलोसिटी अब नाउ वी विल कीप हियर डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी कांस्टेंट। अब क्या है, मैथ्स को चेंज करेंगे, देखो बेटे सेकंड केस, सेकंड केस में क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी को क्या रखेंगे, कांस्टेंट सेकंड केस, लेकिन मैस चेंज करेंगे, मैस इंक्रीज करने से मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, बताऊंगा बेटा कैसे, क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। देखो बेटा सी डियर, अगर हम एक बड़ी स्टोन लेंगे, बड़ी स्टोन, बिग स्टोन, और एक छोटी स्टोन लेंगे, सपोज 100 kg स्टोन, और बेटा यहां एक स्टोन, this is M1 mass of first stone is 100 kg, और M2 is बेटा दूसरी लेंगे, मान लीजिए कि ये 10 kg है, 10 kg और 20 kg, 10 kg 5 kg लेंगे, 2 किलो लेंगे, 2 किलो। देखो बेटा हमने दोनों को रिलीज किया, यहां रिलीज किया, देखो बेटे ये है एक हाइट, यहां पर सेम हाइट पर रिलीज किया, पहले M1 को रिलीज किया फिर M2 को रिलीज किया, दे विल हैव सेम वेलोसिटी हियर। अगर कोई यहां आदमी है जो इसको भी पकड़ेगा, और यहां अगर कोई आदमी है जो इसको पकड़ेगा, स्टॉप करने की कोशिश करेगा, ये इसकी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी तो सेम होगी, सेम पॉइंट, बिकॉज वेलोसिटी इज सेम एट बोथ द पॉइंट्स बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यहां वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी हियर विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन मास इसका क्या है, इसका मास है 100 kg, लेकिन इसका मास कितना है बेटा, इसका मास है 2 kg। इट इज इजीली टू स्टॉप, ये इजी इसको स्टॉप कर सकते हैं यहां इस पोजीशन पर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दिस, ये इसको अपने साथ ही ले जाएंगे बिकॉज यहां इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है ड्यू टू मास, मोमेंटम यहां ज्यादा है ड्यू टू मास ज्यादा है, यहां मोमेंटम कम है ड्यू टू मास कम है। Here velocity at this point the velocity is same because it is at equidistant from this height where we have released the bodies। जहां से बेटा हमने इन बॉडीज को छोड़ दिया, सपोज ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, मैंने छोड़ दिया, लेकिन एट सेम डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस इनकी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास पर है। लेकिन यहाँ इसका जो मोमेंटम, यहाँ इसका मोमेंटम कम होगा, इसका
मोमेंटम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कितना, ये 100 kg है। वी कैन नॉट स्टॉप दिस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप इट। ये हमको अपने साथ ही ले जाएगी। क्यों? बिकॉज क्वांटिटी ऑफ मोशन की ज्यादा है, मोमेंटम इसका ज्यादा है ड्यू टू मास इसका ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है एंड वी कैन नॉट स्टॉप इट। और इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, ऑल्दो वेलोसिटी इज सेम। तो मैंने क्लियर किया हाउ मोमेंटम इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। नाउ नेक्स्ट हियर the next thing that I am going to discuss here is, dear students, Newton's second law of motion. Okay. See dear, तो यहां डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स second law of motion. क्या लिखा बेटे मैंने यहां? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? It states that the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force, and this rate of change in momentum of a body takes place along the direction of the applied force. सबको पता है स्टेटमेंट इसका, लिख लो। क्या स्टेटमेंट? The rate of change of momentum of the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum of a body, the rate of change of linear momentum of a body, linear momentum of a body is directly proportional to the applied force, is directly proportional to the applied force, and this change in momentum takes place, and this change in momentum takes place along the direction of along the direction of applied force, along the direction of applied force। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट किसके लिए बेटा? देखो क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड में कि what is state Newton's second law of motion and how does it give us measurement of force? क्योंकि मैंने पहले ही बताया बेटा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दी कि डेफिनेशन हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। नाउ सेकंड लॉ गिव्स बेटा मेजरमेंट ऑफ फोर्स। कि भी क्वेश्चन ऐसा था एग्जाम में, how Newton's second law gives measurement of force and how Newton's second law gives measurement of force and how it gives mathematical definition of force। ठीक है ना? तो बेटा पहले डिस्कस करेंगे और यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी पहले स्टेटमेंट लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, और फिर यहाँ इसमें डिराइव करेंगे कि हाउ इट गिव्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ओके बेटा, देखो बेटा तो स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसे बेटा चेंज क्या है? ऐसे dp by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f applied or f external applied on the body। क्या बेटा लिखा है मैंने? रेट ऑफ, दैट इज मैथमेटिकली, ऐसे लिखा है मैंने। मैथमेटिकली क्या है बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दैट इज dp by dt, rate of instantaneous rate of change of linear momentum with respect to time is directly proportional to the f external, f applied, and that is statement for Newton's second law of motion। ओके ना, इसको हम चेंज करेंगे बेटा। देखो जितनी चेंज होंगी, जितनी चेंज मोमेंटम में आएगी किसी बॉडी में, इतना इस पर फोर्स अप्लाई होगा। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ? एफ एक्सटर्नल लिखेंगे बेटा। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करेंगे इक्वालिटी में, तो लिखेंगे के डीपी बाय dt, वेयर इन एसआई सिस्टम k is 1, the value of k किसके बराबर है? 1, और एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू है 1, तो therefore k is constant of proportionality। therefore बेटा यहाँ लिखेंगे f external, क्या लिखेंगे? f external लिखेंगे सीधे बेटा किसके बाहर? dp by dt, या f applied लिखो या f external लिखो, dp by dt। ओके किसके बाहर है? dp, क्योंकि k का वैल्यू क्या है? 1 के बराबर होता है। The value of constant here is proportionally constant का वैल्यू क्या होता है? 1। तो बेटा f क्या लिखेंगे? f external लिखेंगे यहाँ
इसी इक्वल टू सीधे लिखेंगे डीपी बाई डी टी। लेकिन बेटा अभी हमने पी किसके बराबर है, पी होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी। ओके वेरी नाइस। तो देयरफॉर बेटा एफ एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा, डी पी के बदले क्या लिखेंगे, एम वी बाई डी टी। ओके वेरी नाइस। देयरफॉर बेटा मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एफ एक्सटर्नल कम्स आउट टू बी एज बेटा एम कॉमन निकालेंगे, डी वी कॉमन नहीं कांस्टेंट है यहाँ, एम को यहाँ कांस्टेंट देखिए बेटा, यहाँ मैं एम को कांस्टेंट मानूंगा। एम को क्या माना है, कांस्टेंट। देखो बेटा कांस्टेंट मैं दिखाऊंगा क्या है, एम में भी वेरिएबल, लेकिन यहां मैंने एम क्या मान लिया, कांस्टेंट। एम को मैंने बाहर किया, एम डीवी बाई डी टी बेटा किसके बाहर आएगा, एम डीवी बाई डी, बताइए एफ एक्स किसके बाहर आएगा बेटा, यहां आएगा देयरफॉर ये एफ एक्सटर्नल आएगा बेटा बराबर एम, बट डीवी बाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डीवी बाई डी टी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये लिखूंगा। तो एफ क्या आया, एफ एक्सटर्नल, तो एफ आया मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन व्हेन आई एम कीपिंग हियर एम टू बी एज कांस्टेंट, लेकिन एम में भी वेरिएबल, मैं दिखाऊंगा कैसे। तब यहां अगर m कांस्टेंट है तो f एक्सटर्नल किसकी बाहर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। thus it has given the definition of measurement of thus Newton second law gives the measurement of force or mathematical expression for force or magnitude of force। thus Newton second law क्या देता है, thus Newton second law क्या देता है बेटा, law gives measurement of force, gives क्या देता है बेटा, gives measurement of force, gives measurement of force। ये कभी आता है क्वेश्चन, what is statement for Newton's second law of motion and how it gives magnitude or measurement of force, ऐसी देता है, that is mass into acceleration। बेटा ये एक्चुअली ये नहीं है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ है एक्चुअली ये F is equal to dp by dt, और इसी का कंक्लूजन आता है कि that we can here find magnitude of force that is mass into acceleration provided m is constant। देखो बेटा क्या है, कभी m अगर कांस्टेंट ना हो तो ये क्या ले टर्म मिलेगा यहाँ, सीडीआर आई बात समझ में, हाँ ओके वेरी नाइस। देखो बेटा सीडीआर अगर कभी ऐसी मास वेरिएबल हो तो ये क्या आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बनेगा, व्हाट विल बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर बेटा m वेरिएबल है, अगर m क्या है वेरिएबल, देखो बेटा क्या है, बोथ m एंड v आर वेरिएबल, तो क्या आएगा देखो बेटा, क्योंकि हमको पता है सिंस इट इज क्लियर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ दैट f इज इक्वल टू dp बाय dt, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो देयरफॉर बेटा m इज इक्वल टू dp के बदले लिखेंगे mv, बिकॉज लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, बाय dt। अगर ये m हमने यहां बाहर किया था, क्यों, क्योंकि हमने m को कांस्टेंट मान, लेकिन यहां m को क्या मानेंगे, वेरिएबल, तो v भी वेरिएबल, यहां बोथ वेरिएबल, m इज वेरिएबल एंड v इज वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, तो where m is variable, v is variable, so we cannot take them outside the differentiation। So this is one function because it depends, it is changing। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, both are variable, तो हम differentiation करेंगे, it is product of two functions। हम लिखेंगे f यहाँ ऐसी f एक्सटर्नल को, एफ एक्सटर्नल को क्या लिखेंगे बेटे, एफ एक्सटर्नल को देखिए बेटा क्या लिखेंगे, पहले ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस m इनटू v, m पहले किसको कांस्टेंट रखेंगे, m को बेटा बाहर रखेंगे, इनटू किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, dv बाई dt वेलोसिटी की, प्लस फिर किसको यहां बाहर करेंगे, v को, और किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, dm बाई dt। ओके ठीक है ना, ये है फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हेन बोथ मास एंड वेलोसिटी आर वेरिएबल। तो बेटा क्या आएगा न्यूटन सेकंड लॉ, m पहले m प्रोडक्ट रूल यहां करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, m पहले ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इनटू किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dt, प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखेंगे, इनटू आप डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन dm बाई dt व्हेन बोथ m एंड v आर वेरिएबल्स। तो ये होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके वेरी नाइस, ठीक है ना। देखो आप इसमें क्या निकालेंगे, देखो बेटा क्या है, आप इसमें कुछ कंडीशन ये रखो यार, एक्चुअली ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये, लेकिन अगर बेटा अगर आप केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट हमारे लिए जो अभी हमने निकाला, इफ अगर m इज कांस्टेंट, अगर हमारी जो भी पिछला केस हमने इफ m इज कांस्टेंट, देखो बेटा ये क्या आएगा, देयरफॉर f एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये बेटा ऐसे ही रखिएगा, m इज कांस्टेंट इनटू dv बाय dt प्लस यहां बेटा v को ऐसे लिखेंगे, लेकिन m क्या है, कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगी, तो बेटा यहां आएगी इनटू 0, क्यों, बिकॉज़ dm बाय dt अब है 0 इस केस के लिए, अगर हमने m कांस्टेंट रखा, तो देयरफॉर बेटा यहां क्या आएगा, बेटा देखो बेटा क्या आएगा,
देयरफॉर यहां आएगा एफ एक्सटर्नल, किसके बराबर आएगा, एफ एक्सटर्नल आएगा बराबर एम इंटू डी बाई डी टी। क्या होता है बेटा, ये होता है पी। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन होती है ना, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम होती है एक्सेलरेशन, प्लस बेटा ये क्या है v इंटू जीरो जीरो। तो देयरफॉर एफ एक्सटर्नल इज जीरो, ये सॉरी इज मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन व्हेन m इज कांस्टेंट, अगर m क्या है कांस्टेंट। ओके, अगर अब के सेकंड लेंगे इफ क्या है बेटा, अगर v कांस्टेंट है, आप क्या के सेकंड में क्या लेंगे बेटा, अगर v कांस्टेंट है, अगर v को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, देयरफॉर वी नो दैट f इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt, लेकिन बेटा dp किसके बारे में, m इंटू v बाई dt। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा ये क्या आएगा, तो देयरफॉर बेटा यहां लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, बेटा यहां लिखेंगे ऐसी m, अब क्या कांस्टेंट, v मैंने कांस्टेंट, तो v बाहर आएगा, अंदर क्या रहेगा dm बाई dt। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ होगा किसके लिए बेटा, when v is constant, v को बाहर करेंगे और dm by dt और m है दूसरा, इसके लिए अगर v कांस्टेंट लेकिन m इसके लिए वेरिएबल है, इसके लिए पहले केस के लिए क्या था बेटा, पहले केस के लिए m कांस्टेंट था लेकिन v वेरिएबल, लेकिन दूसरे केस के लिए मैंने क्या ले लिया, v कांस्टेंट लेकिन m क्या ले लिया, वेरिएबल। तो न्यूटन साहब का लॉ क्या आया, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है v into dm by dt। अगर दोनों वेरिएबल है बेटा, देखो क्या, अगर दोनों बोथ आर वेरिएबल्स तो क्या लिखेंगे, तो जो मैंने पहले इक्वेशन में बताई आपको, ये बोथ केस थर्ड बनाएंगे यहां, ये बोथ दोनों m and v are वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे बेटा यहां, तो बेटे यहां क्या लिखेंगे, बोथ आर वेरिएबल, तो बेटे यहां इसे लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt, लेकिन ये लिखेंगे बेटा dp के बदले mv dt। तो बेटे क्या है, when both m and v are variables, तो क्या करेंगे बेटे, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको। तो ये क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल आएगा बेटा ऐसी, पहले m को ऐसे ही रखेंगे इनटू डी बाई डी टी, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, प्लस अब v को ऐसे ही रखेंगे, आप किसकी डिफरेंशिएट करेंगे, डी एम बाई डी टी। ये कब है, व्हेन इट इज न्यूटन सेकंड लॉ, व्हेन बोथ m and v are variable। ओके, दिस इज वेरी नाइस। और इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर खत्म हुआ चाहता है, क्योंकि बिजली चली गई।